Welcome back. Today we will start the last chapter of geography, that is natural vegetation and wildlife. In this session we have 4 chapters. 3 we have already done, and physical features of India, India's size and location, climate. Now the last chapter of the of essay 2, that is natural vegetation and wildlife. So let us start the chapter. Look at the picture. Here you can see animal or birds with plants. That is our chapter related to the natural vegetations found in India. पहली बात तो बेटा natural vegetation क्या होती है? Vegetation grow without the help of human being is known as natural vegetation. जो vegetation बिना किसी इंसानी मदद के उग जाती हैं उन्हें natural vegetation कहा जाता है. Clear? In India, there are 47,000 types of plant species found. भारत के अंदर लगभग 47,000 तरह के पेड़ पाए जाते हैं. अगर हम प्लांट स्पीसीज के बेस पे इंडिया की रैंक की बात करें तो वी आर 10th इन द वर्ल्ड. दुनिया में हमारा 10वां स्थान है. और एशिया की बात करें तो वी रैंक 4th इन एशिया. Then we have 15,000 types of flowering plants, that is 6% of the world flowering plants. Next, 89,000 types of animal species are found here. 1,200 types of bird species, which is 13% of the world's total birds, is found in India. 2,500 types of fish species, around 12% of the world's stock found in India. 5% to 6% of amphibians and reptiles and mammals found in the country. Amazing. आपको पता था हमारे यहाँ पर 15,000 तरह के फूलों वाले पौधे पाए जाते हैं. Now next is, what is virgin vegetation? The vegetation which grew without the help of human being is known as natural or virgin vegetation, or which the plants which grow purely in India, or the plants which are purely Indian species is known as virgin vegetation. A plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time is called virgin vegetation. लंबे समय तक जिसमें कोई इंसानी हस्तक्षेप नहीं हुआ, डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं virgin vegetation. What are the factors responsible for huge diversity in flora and fauna? One more thing. What is flora and fauna? The plant species found in a particular area is known as flora. Similarly, the species of animals are referred to as fauna. The plant species found in a region is known as flora, while the species of animals are referred to as fauna. So what are the factors on which the huge diversity of flora and fauna kingdom depends? Or what are the factors responsible for the diversity of flora and fauna? Let us start. First one is relief and second one is climate. Relief के अंदर हम दो चीजें लेते हैं, land and type of soil, और climate के अंदर हम लेते हैं temperature, photoperiod and precipitation. Nature of land influences the type of vegetation. Fertile level land is generally devoted to agriculture. Undulating and rough terrain areas where grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. Soil. Different types of soil provide basis for different type of vegetation. अलग अलग तरह की सॉइल में अलग अलग तरह की वनस्पतियां होती हैं. सैंडी डेजर्ट सॉइल सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस. जहां पर सैंडी सॉइल होती है वहां पर कैक्टस और थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं. वेट मार्शी डेल्टिक सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टिक वेजिटेशन. डेल्टिक रीजन में वेट मार्शी और डेल्टिक सॉइल होती है तो डेल्टिक वेजिटेशन पाई जाती है. The hill slopes with some depth of soil have coniferous trees
और जो हिल्स एरिया है वहां पर डेप्थ ऑफ सॉइल के कारण कॉनिफरस ट्रीज होते हैं, यानी कि लंबे नोकदार पेड़ वहां पर होते हैं। आइसक्रीम की कौन होती है जैसे, उसी शेप के ट्रीज हमारे हिली एरियाज में पाए जाते हैं, कॉनिफरस। नेक्स्ट है बेटा क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर हम 3 चीजें लेते हैं, टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड द precipitation. Temperature. The character and extent of vegetation are mainly determined by temperature along with humidity in the air, precipitation and soil. टेम्परेचर किसी भी एरिया के वेजिटेशन को इफेक्ट करता है। अगर ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट होगा, टेम्परेचर होगा, तो वनस्पतियां अलग प्रकार की होंगी। अगर हाई टेम्परेचर होगा, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन होंगी, तो वहां पर एरिड सॉइल होगी और श्रब्स और बुशेस पाई जाएंगी। The character and extent of vegetation are mainly determined by the temperature along with humidity in the air. On the slopes of the Himalaya and the hills of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in temperature affects the types of vegetation. जैसे जैसे हम हिमालय पे ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा और उसका इफेक्ट हमारी वेजिटेशन के ऊपर पड़ेगा। फोटो पीरियड मीन्स सनलाइट। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस is due to difference in latitude, altitude, season and duration of the day. अलग अलग जगह पर सनरेज जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड में होती हैं। कहीं पर सनरेज ज्यादा है इक्वेटर के आसपास, और जो हिली एरियाज हैं, हमारा माउंटेनियस रीजन है, वहां पर सनलाइट का फर्क है। सो ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। क्योंकि सनलाइट गर्मियों के मौसम में ज्यादा रहती है, तो गर्मी के मौसम में पेड़ जो हैं वो जल्दी से ग्रो करते हैं। Precipitation means rainfall. In India, the advancing southwest monsoon and the retreating northeast monsoons bring in almost the entire rainfall. Areas of heavy rainfall have more dense vegetation as compared to other areas of less rainfall. जहां बारिश ज्यादा होती है वहां डेंस वेजिटेशन पाई जाती है, और जहां बारिश कम होती है वहां जो वेजिटेशन है एज कंपेयर टू हैवी रेनफॉल, जो लेस रेनफॉल वाला एरिया है वहां वेजिटेशन कम ग्रो करती है। Here is a question arise, why have the western slopes of the Western Ghat covered with the thick forest and not the eastern slopes? जो वेस्टर्न घाट है वहां पर थिक वेजिटेशन है, जबकि ईस्टर्न स्लोप्स में ऐसा नहीं है, ईस्टर्न घाट में ऐसा नहीं है। तो इसका जवाब आप देंगे क्या? जो वेस्टर्न घाट है वहां पर साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती है, एडवांसिंग मानसून है, वहां पर बारिश का जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा लंबा है, जबकि ईस्टर्न घाट में बारिश केवल रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर टू दिसंबर होती है, इसलिए वहां पर वेजिटेशन लेस डेंस है। Why is the forest important for human beings? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे प्ले अ मेजर रोल इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज। बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं आज भी हमारे देश में वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। ऑफर पैनोरामिक और सीनिक व्यू फॉर रिक्रिएशन, लोग एम्यूजमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए जंगलों में या पहाड़ों पर जाते हैं। कंट्रोल्स विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉज रेनफॉल, ये बारिश को लाने में जंगल सहायता करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वाइल्ड लाइफ का घर है, और जंगलों के ना होने से हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट होता जा रहा है। प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ, जहां पर पेड़ घने होते हैं वहां ह्यूमस होता है, और ह्यूमस की वजह से सॉइल में फर्टिलिटी होती है, और जहां पर
वरना पेड़ पौधे नहीं होंगे, वहां मिट्टी में ह्यूमस भी नहीं होगा, फर्टिलिटी भी नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, इन द डेजर्ट रीजन देयर इज नो वेजिटेशन, so no fertility in the soil, it means no humus. India's natural vegetation has undergone many changes due to the various factors. What are they? भारत के नेचुरल वेजिटेशन में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, उनका क्या कारण है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टीवेटेड लैंड. लगातार खेती के लिए जमीन की डिमांड बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण अनाज की मांग बढ़ रही है और अनाज की मांग बढ़ने के कारण जंगलों को साफ किया जा रहा है. डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग, अर्बनाइजेशन, ओवरग्रेजिंग ऑफ पॉस्चर्स. व्हाट इज एन इकोसिस्टम? 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है. All the plants and animals in a given area are interlinked and interdependent on each other, as well as the physical environment forming an ecosystem. Ecosystem क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स के इंटरलिंक या इंटरडिपेंडेंट से जो फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं. हर एरिया का अपना अलग इकोसिस्टम है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो एरिया हम जहाँ रहते हैं वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा, और जो कोस्टल रीजन है वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा, जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम. ह्यूमन बींग्स भी इस इकोसिस्टम का ही एक प्रमुख हिस्सा है. Next, a note on the Indian flora. 47,000 plant species, 10th in world and 4th in Asia. 15,000 flowering plants, 6% of the world's total. India also rich in non-flowering plants like ferns, algae and fungi. हमारे यहाँ पर non-flowering plants भी पाए जाते हैं, ferns, algae and fungi. Flora ranges from one found in tropics to the Arctic region due to the country's varied relief, temperature and rainfall conditions. हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जैसा कि ट्रॉपिकल रीजन से लेकर आर्कटिक रीजन तक की जितनी प्रकार की वनस्पतियां हैं वो हमारे यहाँ पाई जाती हैं, क्योंकि रिलीफ फीचर्स अलग अलग हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल कंडीशंस अलग अलग हैं. मोस्ट ऑफ Himalayan and Paleozoic regions are covered with indigenous vegetation. Indigenous vegetation क्या होती है? वो vegetation जो हमारे यहाँ पर ही पैदा होती हैं, हमारे यहाँ पर ही होती हैं. These species are found in the North Indian plains and the Thar desert. Owing to destruction of forests for agricultural and industrial development, several plants are facing extinction. लगातार जंगलों के कटने से, खेती और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की वजह से हमारे बहुत सारी प्लांट स्पीसीज ऐसी हैं जो लगभग या तो खत्म हो चुकी हैं या खत्म होने की कगार पर हैं. द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इन लार्ज पार्ट इज नो मोर नेचुरल. वेजिटेशन कवर जो भारत में पेड़ पौधे हैं वो नेचुरल नहीं कहे जाएंगे इन रियल सेंस, एक्सेप्ट सम इनएक्सेसिबल रीजन्स लाइक द थार डेजर्ट ऑफ or the Himalayas. The vegetation has been destroyed in some places or replaced or degraded by human occupancy. इंसानी इंटरप्शन के कारण हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं वो लगातार नष्ट होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, और उनकी जगह पर नई वनस्पतियां ग्रो कर रही हैं. What are biomes? What is the basis of their grouping? Biomes क्या होते हैं? A very large ecosystem on land having distinct types of vegetation and animal life is called biome. देखिए, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम जिसके अंदर अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह की वेजिटेशन है और एनिमल लाइफ है या वाइल्ड लाइफ है, उसे बायोम कहते हैं. प्लांट फॉर्मेशंस आर यूज्ड एज बेसिस ऑफ देयर ग्रुपिंग्स और आइडेंटिफिकेशन. The 5 principal biomes of the world: forest, savanna, grassland, desert and tundra. What is tundra? जो
फ्रिगिड जोन है. अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन, टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन एंड फ्रिगिड जोन. तो फ्रिगिड जोन के अंदर यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, दीज आर नोन एज टुंड्रा वेजिटेशन. Tropical rainforests require rainfall about 200 centimeters with short dry season, found in the rainy parts of Western Ghat and island groups of Lakshadweep and Andaman Nicobar Island. पहली बात तो tropical rainforest क्या होते हैं? Those forests which do not shed their leaves in a particular season are known as tropical rainforest. वो पेड़ जो किसी पर्टिकुलर सीजन में अपने पत्ते नहीं गिराते उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, क्योंकि उनके पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं. हमारे यहाँ देश में ये कहाँ पाए जाते हैं? वेस्टर्न मार्जिन्स में, वेस्टर्न घाट, आइलैंड ग्रुप्स, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, असम और तमिलनाडु कोस्ट पे. ट्रीज रीच ग्रेट हाइट्स. यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, 60 मीटर या उससे भी ज्यादा. Since the region is warm and wet throughout the year, it has luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure. Evergreen forest, as there is no definite time for trees to shed their leaves, these forests appear green all the year around. क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, तो ये सारा साल हरे दिखाई देते हैं. Commercially important trees are ebony, mahogany and rosewood, rubber and cinchona. Common animals found here: elephants, monkey, lemur and deer. One-horned rhinoceros found in the jungles of Assam and West Bengal. Others, plenty of birds, bats, sloth, scorpions and snails are found. Here you can see different types of vegetation and their height. अलग अलग तरह के पेड़ जो पाए जाते हैं उनकी हाइट. ट्रॉपिक